বন্ধুরা, কে কোথায় আছো? সবাই চলে এসো, আমি চুলের ব্যাপারে কিছু বলবো। কি বলবো তাই দেখার। একটা কফি পাউডার, কিছুটা কফি পাউডার নিতে হবে। নেওয়ার পরে তারপরে গরম জল নিতে হবে। গরম জলের ভিতরে কফি পাউডারটা ভালো করে গলাতে হবে। এরপরে সেটা হাতে নিতে হবে, নিতে চুলের মধ্যে দিতে হবে। চুলটাকে উল্টে এরকম করে দিতে হবে। চুলটা যেহেতু কফিতে একটু জল ছিল, এবার তার সামনে একটু সিরাম দিতে হবে। সিরাম দিয়ে ভালো করে এরপরে চুলটাকে শোকাতে হবে। কফি পাউডার আর জলের জন্য চুলটা একটু শুকিয়ে গেছে, হয়ে ভিজে গেছে। এখন এই উল্টো ভাবে শোকাতে হবে। চুলটাকে উল্টে ভেতর থেকে হাওয়া দিতে হবে। সাবধানে করবেন যাতে চুল ঢুকে না যায়, এটা খেয়াল করবেন। উল্টো করে করতে হবে ভেতরের দিক থেকে। এবার চুলটাকে উল্টে নিলে আবার চুলটাকে ভালো করে আঁচড়াতে হবে। এবার সামনে করে, এবার দেখুন আমি কি করে মুড়ছি। যেভাবে মুড়বেন সেভাবেই এটা হয়ে যাবে, কোনো কিছু লাগবে না। তা করে কিছুক্ষণ ওইভাবে রেখে দিতে হবে, পরে আস্তে আস্তে খুলে দিলেই ওটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। একটু পরে চুলটা দেখবেন চুলটাকে যেমন সেট করবেন তেমন থাকবে। পেছনের দিকটা একটু ফুলিয়ে এরকম আটকে রাখবেন, তারপরে এমন খুলে দেবেন। কিছুক্ষণ রেখে যেমন তেমন করে রেখে দেবেন, তারপরে খুলবেন। দেখবেন চুলটা একদম মানে বেশ সুন্দর হয়ে গেছে। কতটা মানে বাউন্স হয়ে গেছে, ফুলে একদম। এরকম কোথাও গেলে করতে পারে। যে অংশটা ফোলাতে চাইবেন সে অংশে ক্লিপ আটকে নেবেন, একটু ফুলিয়ে রেখে দেবেন, তারপরে আস্তে করে কিছুক্ষণ রাখার পরে খুলে দেবেন। চুলে শ্যাম্পু না করে ঘরোয়া পদ্ধতিতে যদি আপনি বাউন্স করতে চান আর চুলকে সেট করতে চান, তাহলে এই কফি পাউডারটা খুব কাজ করবে। আর সিরামটা তার সঙ্গে গরম হিটারটাও লাগবে। এটা দিয়ে একবার দেখুন কেমন লাগছে, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। চুলের কোনো ক্ষতিও হবে না, চুলে একটু কালারও হবে। আর সামনের অংশটা ফোলাতে গেলে একটা ক্লিপ দিয়ে তারপরে একটু হিটার দিয়ে নেবেন, তারপরে কিছুক্ষণ রাখার পরে খুলে নেবেন। দেখবেন সেটা সুন্দর ফুলে গেছে, সেট হয়ে গেছে। ড্রয়িংটা মেন। কি করছি দেখুন, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন। আপনারা সাথে থাকলে আমি কাজ করতে পারবো। অনেক কিছুই পারি, কিন্তু কিছু বক্তব্য থাকলে বললে পরে আমার সুবিধা হয়, কারো কিছু দেখার ইচ্ছে থাকলে। যারা দেখতে ভালোবাসে দেখুন, যারা ভালোবাসেন তারা শিখুন। সরস্বতী পুজো আসছে, সরস্বতী ড্রয়িং করছি 8 দিয়ে, আর 2 দিয়ে হাঁস তৈরি করছি। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করুন। রাখছি তাহলে। 8 সংখ্যা দিয়ে সরস্বতী করেছি, 2 দিয়ে হাঁস করেছি। এটা আমার আগের করা, এখন আবার নতুন করে করছি। এটা পেন স্কেচ, পুরো পেনের স্কেচ, হয়তো এবার একটু আলাদা হতে পারে। দেখুন, ভালো লাগলে লাইক করবেন। या फिर आप कहीं इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, कोई भी नॉर्मल एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो सरस्वती का मंत्र जो है वो 31 टाइम्स सेंड करके जाना है। मंत्र है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये मंत्र आप सेंड करके जाइएगा, सरस्वती जी खुद आपके साथ में बैठ के आपको पेपर लिखवाएंगे। और भगवान का स्मरण करो, वो आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो, तो ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र, जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था, कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करना। जिसको बड़ा बना देते ना, भगवान है। मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान, मैं आपका हूँ। वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। और दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूँ। अब हमारा अमंगल नहीं हो सकता। टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। धर्मात्मा था, धर्म की पूर्ण रक्षा
अन्य 4-5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी और उनको पता नहीं था। धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था और उनके संतान हुई थी। उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था, आक्रमण चारों तरफ से हो गया और भगवान का भजन करने वाले थे। अब पराजित तो होना ही पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा हैं और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती। अचानक आक्रमण, मारे गए, वो राजा मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए तो दासी से पैर पकड़ा और कहा, तू ही बचा सकती मेरे बेटे को, भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे, कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में, जिसमें दोना पत्थर डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास और निकली। सैनिकों का क्या है, तो ऊपर से ऐसे दिखाया दोना पत्थर, उनका निकलने दो, ये तो दासी है, राज परिवार का कोई नहीं बचना चाहिए। सब रानी, सब पूरा परिवार मार डाला। वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। बहुत प्रवीण थी, दासियां बहुत प्रवीण होती हैं। तो धृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे, उनकी शरण में गए, उसको राजकुमार बताना था। उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूं और ये मेरा पुत्र है, मैं हर कार्य में प्रवीण हूं, आप चाहे जिस दास्ता में रख ले। उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया, ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूँ आपकी शरण में रहकर। उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली तो दासी कला में तो प्रवीण थी, उसे दासी बना के रख लिया और वो बालक राजमंत्री के घर में। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते रहो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया मेट। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। वो उसका जन्मदिन उत्सव मना रहे थे, तो बड़े बड़े विद्वान सब आए हुए थे। तो पुत्री का हाथ दिखाया, विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी और लड़के को देखा खेलते हुए, चंद्रहास जी को। तो उनका इसका पति तो ये होगा। एकदम अपमान लगा ना, राज्य मंत्री और उस दासी पुत्र। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला।